फॉर फ्यूचर वेस्ट फ्री सिटीज, मुस्तकबिल के फजला से पाक शहरों की तैयारी। Cities across the world are preparing themselves to meet the environmental challenges. दुनिया भर के शहर माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। Read the article to gain an understanding how what the cities in future will look like and how Pakistan needs to prepare itself for the environmental challenges. इस मजमून को पढ़ें ताकि आप समझ सकें कि मुस्तकबिल के शहर कैसे होंगे और पाकिस्तान को माहौलियाती चैलेंजेस के लिए कैसे तैयार होना चाहिए। The importance of the natural environment in providing the foundation for human well-being, development and resilience cannot be denied. कुदरती माहौल की अहमियत को इंसानी फलाह, तरक्की और मजबूती की बुनियाद के तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। But it is equally important to protect the environment. लेकिन माहौल का तहफ़्फ़ुज़ भी उतना ही अहम है। Heavily populated cities have the potential to destroy all kinds of plants and animal habitats, but they are particularly threatening the fragile ecosystem such as rainforests. गुंजान आबाद शहर हर किस्म के पौधों और जानवरों की रिहाइशगाहों को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं और वो ख़ास तौर पर नाजुक माहौलियाती निज़ाम जैसे बारानी जंगलात के लिए ख़तरा हैं। Measures are being taken to protect the environment. माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। A number of countries are working to make their cities resilient and sustainable. कई ममालिक अपने शहरों को मजबूत और पायदार बनाने पर काम कर रहे हैं। These cities are also called future cities. ऐसे शहरों को मुस्तकबिल के शहर भी कहा जाता है। Carbon free transport, Grubbage free streets, plentiful water supplies, etc. अब the goals of future cities. कार्बन से पाक ट्रांसपोर्ट, कूड़ा क्रिकेट से पाक सड़कें, वाफर पानी की फराहमी वगैरह मुस्तकबिल के शहरों के कुछ मकासद हैं। Carbon free transport, garbage free streets, plentiful water supplies, etc. are some of the goals of future cities. कार्बन से पाक ट्रांसपोर्ट, कूड़ा क्रिकेट से पाक सड़कें, वाफर पानी की फराहमी वगैरह मुस्तकबिल के शहरों के कुछ मकासद हैं। Countries are coming up with innovative ideas to convert waste and garbage into fertilizers and using them in constructing modern carbon-free buildings. ममालिक नए ख्यालात के साथ सामने आ रहे हैं ताकि फुजले और कचरे को खाद में तब्दील किया जा सके और उसे जदीद कार्बन फ्री इमारतों की तामीर में इस्तेमाल किया जा सके। One example is the ancient city of Venlo. ऐसी एक मिसाल तदीन शहर वेनलो की है। The ancient city of Venlo in the Netherlands has embraced the principles of cradle to cradle in all of its new construction. नीदरलैंड्स का कदीम शहर वेनलो अपनी तमाम नई तामीरात में क्रेडल टू क्रेडल के उसूलों को अपना चुका है। Every material must be reusable with none going to the landfill and no loss of quality. हर मवाद काबिल इस्तेमाल होना चाहिए, कोई भी चीज कूड़े में ना जाए और मेयार में कोई कमी ना हो। So when the centuries-old town hall needed renovating, city leaders chose instead to build a brand new one which opened in 2016. चुनाचे जब सदियों पुरानी टाउन हॉल की मुरम्मत की जरूरत पड़ी, तो शहर के रहनुमाओं ने एक बिल्कुल नई इमारत बनाने का फैसला किया जो 2016 में खोली गई। Cases the benefits of a C2C design, puts the city on the path to a circular economy and acts as a model for cities around the world that want to go waste free. ये C2C डिजाइन के फवायद को जाहिर करती है, शहर को एक दायरा कार मईशत की राह पर डालती है और दुनिया भर के इन शहरों के लिए एक नमूना बनती है जो फुजला से पाक होना चाहते हैं। The town hall boasts truly healthy air thanks to several innovations. टाउन हॉल वाकई सेहतमंद हवा पर फख्र करता है
कई जिद्दतों की बदौलत। Its solar chimney warms incoming air, creating a natural draft. No mechanical ventilation is necessary. इसकी शमसी चमनी, सोलर चिमनी, आने वाली हवा को गर्म करती है, जो एक कुदरती हवाई बहाव बनाती है। किसी मशीनी हवादारी की जरूरत नहीं पड़ती। Question A. What is meant by resilient and sustainable cities? Answer. Resilient and sustainable cities are those that can adapt to change, recover from natural disasters, and maintain their resources for the future. शहर वो होते हैं जो तब्दीलियों को कबूल करते हैं, कुदरती आफात के बाद बहाल हो जाते हैं और अपने वसाइल को मुस्तकबिल के लिए महफूज रखते हैं। Question B. What are some of the goals of the future cities? Answer. Goals include reducing waste, conserving energy, using smart technology, and improving the quality of life for citizens. अहदाफ में फिजला कम करना, तवानाई बचाना, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और शहरियों की जिंदगी का मेयार बेहतर बनाना शामिल है। Question C. What is meant by vertical gardening? अमूदी बागबानी से क्या मुराद है? Answer. Vertical gardening means growing plants on walls or vertical surfaces to save space and purify air. अमूदी बागबानी का मतलब है दीवारों या खड़ी सतहों पर पौधे उगाना ताकि जगह बचाई जा सके और हवा को साफ किया जा सके। Question D. Which elements of sustainable technologies were used to make the town hall of Venlo more environment friendly? वेनलो के टाउन हॉल को माहौल दोस्त बनाने के लिए
कौन सी पायदार टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गईं? आंसर, इट यूज्ड नेचुरल लाइट, recycled materials, clean air systems and greenery on walls and roofs. इसमें कुदरती रोशनी, रिसाइकल शुदा मवाद, साफ हवा के निजाम और दीवारों व छतों पर सब्जा इस्तेमाल किया गया। Question E. The article shares a few examples on how to convert waste into energy and use it in construction. Can you share 2 examples in detail? फुजले को तवानाई और तामीराती मवाद में कैसे तब्दील किया जा सकता है? 2 मिसालें दें। आंसर, 1. Waste food is turned into biogas to generate electricity. फुजला शुदा खुराक से बायोगैस बनाई जाती है जो बिजली पैदा करती है। 2. Demolished building materials are reused to make roads and bricks. गिरे हुए इमारतों का मलबा सड़कों और ईंटों की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। Question F. How can we promote vertical gardening in our cities? हम अपने शहरों में अमूदी बागबानी को कैसे फरोग दे सकते हैं? Answer, by giving incentives, awareness campaigns, using rooftops and encouraging community participation. मराहत देकर, आगाही मुहिमात चलाकर, छतों को इस्तेमाल करके और अवाम की शमूलियत को फरोग देकर। Question H. Why is it important to preserve natural resources? कुदरती वसाइल को महफूज रखना क्यों जरूरी है? आंसर, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज दे आर लिमिटेड एंड इसेंशियल फॉर फ्यूचर जनरेशंस। कुदरती वसाइल को महफूज रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये महदूद है और आइंदा नस्लों के लिए निहायत जरूरी है। दे प्रोवाइड अस विथ वाटर, फूड, फ्यूल एंड रॉ मटेरियल्स फॉर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। ये हमें पानी, खुराक, ईंधन और खाम माल फराहम करते हैं जो हमारी बका और तरक्की के लिए जरूरी हैं। विदाउट प्रिजर्वेशन वी मे फेस शॉर्टेजेस, एनवायरमेंटल डैमेज एंड हेल्थ इश्यूज। अगर हम उनकी हिफाजत ना करें तो किल्लत, माहौलियाती नुकसान और सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। Question G. What measures can you take to reduce waste in your city? Suggest at least 5 ways to turn your city into a resilient city. आप अपने शहर में फुजला कम करने के लिए क्या इक़दामात कर सकते हैं? कम से कम 5 तजावीज़ दें ताकि शहर को पायदार बनाया जा सके। आंसर, 1. प्रमोट रिसाइकलिंग एंड रीयूज। रिसाइकलिंग और दोबारा इस्तेमाल को फरोग दें। 2. रिड्यूस प्लास्टिक यूसेज। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। 3. इनकरेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड साइकिलिंग। अवामी ट्रांसपोर्ट और साइकिल चलाने की हौसला अफजाई करें। 4. यूज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। काबिले तजदीद तवानाई के जराए इस्तेमाल करें। 5. प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रमोट वर्टिकल गार्डनिंग। ज्यादा दरख्त लगाएं और अमूदी बागबानी को फरोग दें।